Hey all, welcome you all to our channel K Edifiers, and in this session we are going to start something new, that is phrasal verbs, and which is really very interesting to learn. But there are so many phrasal verbs in English grammar and we find difficult to cover up all these. And you know what, many of my students ask that, ma'am, why all the native speakers of English speak so many phrasal verbs where we can easily express our thoughts and ideas through regular verbs. But I must say, phrasal verbs really makes the conversation easier, quicker and really relaxed, and it makes the communication natural and fluid. So we also learn some phrasal verbs. That's why I am here I'll cover up 10 phrasal verbs in each videos, and likewise we'll cover so many phrasal verbs. Okay, so first one I have written here, put aside. So before going to start, I want to say another thing. By having a phrasal verb, we can't guess the meaning of that verb, okay? Because phrasal verb having a verb and another adverb, maybe a verb and preposition, maybe a verb and adjective. So हमें maybe verb का meaning पता हो, maybe adjective का meaning separately पता हो, लेकिन हम जब वो phrasal verb के way में हमारे सामने आता है, then we get confusion that what will be the answer and what will be the meaning, I mean what is the meaning of that one. कभी कभी हम guess करके लिख लेते हैं, then we find it wrong after appearing the examination, right? ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. मैं कभी कभी because so many phrasal verbs are there, तो कभी कभी कोई छूट जाता है हमसे. So जब एग्जाम में appear होता है तो हम उसको guess करते हैं, अच्छा put है मतलब कहीं रखना, side, अच्छा side bar और something. तो ऐसे हम अगर guess करके उसको लिख के आते हैं, then obviously जब घर पे आके हम पेपर चेक करते हैं, oh God, I lost 1 mark. So we really happened, that also happened to me, I am confessing here. So that's why I am here having phrasal verbs, and I mean trust me, it is very interesting and easy also. Okay, so let me start. So first one is put aside. Okay, put aside means to forget, right? I am writing here for you. Forget, कोई चीज को भूल जाना, put aside. Let me write some example for you. मैं कुछ example के हिसाब से आपको ये clear कर पाऊंगी. So here I'll give some examples for you. So first one is we should, that is easy example, right? We should put aside our differences and make a new beginning, right? What does that mean? We should put aside, I have written here, means to forget, right? So हम हमारे भीतर जो differences है, हम उसको भूल कर एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं. That means we should put aside our differences and we can make a new beginning, right? Put aside का मतलब है भूल जाना, मतलब भुला देना या भूल जाना, right? So next one is fall through. Can you guess what is the meaning? Okay, let me write, that is fail, right? किसी चीज में fail हो जाना. What will be the example? Let me write my plans fail or fall through because of कोरोना वायरस. ऑब्वियसली हमारे जितने भी प्लान थे कोरोना वायरस के वजह से, नोबल कोरोना वायरस, राइट? नोबल कोरोना वायरस के वजह से सारा फेल हो गया. तो वहां पे आप फेल के जगह fall through लिख सकते हैं. दिस इज द phrasal verb. Am I right? So my plans fail because of novel coronavirus, या फिर my plans fall through because of novel coronavirus, right? So fall through आप कभी भी भूल सकते हैं. हमारा प्लान फेल हो गया है, राइट? तो आप एग्जाम्पल के हिसाब से आपको इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज टर्न डाउन. टर्न डाउन, तो आप ये भाव है, ये एक प्रीपोजिशन है, तो आप सोचेंगे टर्न डाउन किसी चीज को नीचे घुमा देना या क्या. हम ऐसे ही गेस करते हैं ना चीज़ों को,
लेकिन फ्रेजल वर्ब में ऐसे नहीं होता। आपको वंस बस लुक मतलब देखना पड़ेगा, या फिर कहीं से रीडिंग करना पड़ेगा, या फिर एक बार वीडियोस को देख लीजिए, आपका याद रह जाएगा, राइट। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट, किसी चीज को मना कर देना, रिजेक्ट। आई टर्न डाउन हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट। हम बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हैं फेसबुक में या फिर कहीं पे भी, हमारी मर्जी, वी टर्न डाउन दैट वन, राइट। सो आई टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट। यू कैन राइट प्रपोजल, किसी प्रपोजल को अगर आप मना कर रहे हैं तब वहां पे आप रिजेक्ट की जगह टर्न डाउन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टर्न को पास्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि मैंने ये कर दिया, पास्ट में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टर्न्ड, राइट। सो आई टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट, मैंने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज आई डिडंट लाइक दैट, ओके, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने मना कर दिया, सो टर्न डाउन, राइट। पैचअप, पैचअप का मतलब ये तो आपको पता ही होगा, अरे पैचअप करवा लेते हैं, पैचअप कर देते हैं, ये तो पूरा टीनेजर्स यूज करते रहते हैं ये पैचअप वर्ड, आई थिंक आपको पता ही होगा। दैट इज मेक थिंग्स बेटर, कुछ बिगड़ गया है उसको फिर से बेटर बनाने के लिए हम ये वाला फ्रेजल वर्ब्स यूज कर सकते हैं। Am I right? So make things better. Let me write an interesting example for you. He wants patch up with us. But we are no longer interested, right? Patch up means make things better. वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता है, मतलब हमारे साथ उसके साथ जो अनबन हो गया है या फिर कुछ चीज़ें खराब हो गए वो सब सेट करना चाहता है पहले की तरह, बट हम लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जो करना था उसने कर लिया, अब हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ पैचअप करने के लिए, राइट। सो वहाँ पे उसने क्या कहा, वो उनसे पैचअप करना चाहते हैं लेकिन बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू पैच अप विद हिम, राइट। सो नेक्स्ट वन इज गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ मीन्स, कैन यू गेस? मीन्स राइट, हैंडल और मैनेज, हैंडल और मैनेज थिंग्स, ओके। कभी कभी मेरे जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं मैम आप इतने सारे बच्चों को कैसे हैंडल कर लेते हैं। सो वहाँ पे हाउ डू यू हैंडल विथ ऑल दीज चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स, सच नोटोरियस स्टूडेंट्स, और यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंडल वी कैन यूज गेट ऑन विथ ऑन दैट। मैम हाउ डू यू गेट ऑन विथ सच नोटोरियस स्टूडेंट्स? Whether my students are not notorious, they are very principled, they are very obedient, I appreciate that, okay. Okay, listen. So that's why I'm going to write the example. Example will be same thing. How do you get on with such things? आप ऐसे चीज़ों के साथ कैसे हैंडल कर लेते हैं, ऐसे चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर लेते हैं। आप अगर किसी को पूछना चाहते हैं, यहाँ पे हैंडल आप जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंडल और मैनेज यू कैन ईजिली यूज गेट ऑन विथ, बिकॉज मैंने पहले भी आपको कहा था बाय यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स योर इंग्लिश कन्वर्सेशन विल साउंड्स रियली वेरी नेचुरल एंड फ्लूइड. So another one, exalt art. Okay, exalt art means, any guess? Okay, so exalt art means to enjoy, right? हम जब enjoy करते हैं, आप कोई भी sentence बोल रहे हैं इंग्लिश में तो आप enjoy की जगह आप exalt art यूज कर सकते हैं. Let me write an example. Exalt, हाँ, they exalted are their engagement ceremony, right? Or you can say the people are exalting at the sea beach, right?
कोई भी चीज़ आप एंजॉय को, जैसे एंजॉयड, एंजॉइंग, जब मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ चल रहा है एंजॉइंग बोल रहे हैं, या फिर पास्ट में एंजॉयड बोल रहे हैं, वैसे ही आप एंजॉयड के जगह एग्जॉल्टेड आर्ट लिख सकते हैं, एंजॉइंग के जगह एग्जॉल्टिंग आर्ट भी लिख सकते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंजॉय you can use exalt art. Okay, next one is payoff, means produce benefits. Payoff means produce benefits. Example, my hard work will definitely pay off someday. ओके, माई हार्डवर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे. मैंने जो हार्डवर्क किया है तो एक दिन उसका बेनिफिट मुझे ज़रूर मिलेगा. तो आप पे ऑफ कहीं पे भी आपको बेनिफिट्स मतलब मिल रहा है, या फिर किसी को ही गॉट पे ऑफ ओवर हिज कंटिन्यूअस वर्किंग, या फिर ओवर हिज डे एंड नाइट वर्क. ओके, सो कहीं पे भी आपको बेनिफिट यूज़ करना होता है, वहाँ पे आप मतलब कहीं पे आपको बेनिफिट्स मिल रहा है किसी को, तो वहाँ पे आप बेनिफिट के इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेनिफिट और बेनिफिट की जगह आप पे ऑफ यूज कर सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट वन इज अबाइड बाय. इट्स इजी वन, मुझे लगता है ये सबको आता होगा. अबाइड बाय मीन्स कंप्लाई विथ. कभी कभी कंप्लाई का मीनिंग भी हमें डाउट होता है. और अग्री तो आप सबको पता होगा, राइट. अग्री विथ. तो अबाइड बाय का मतलब अग्री विथ. अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी रूल बना रहे हैं हम उसको मान रहे हैं, हम उस पर अग्री कर रहे हैं. तो लेट मी राइट द एग्जाम्पल ऑन दैट. we should abide by the rules made by our PM to get rid from the dangerous virus, right. सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो भी रूल्स बना रहे हैं हम उस पर अग्री कर रहे हैं, या हमें अग्री करना चाहिए ताकि हम ये डेंजरस वायरस से हमें मुक्ति मिल सके, राइट. सो अबाइड बाय मतलब कंप्लाई विथ या फिर अग्री विथ, कोई चीज़ में अग्री करना. एंड नेक्स्ट वन इज होल्ड बैक. इंटरेस्टिंग वन, आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं. होल्ड बैक मतलब कॉन्सिल और हाइड, कोई चीज़ को छुपाना. यू शुड नॉट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी. तुम मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ओके. और ये ठीक नहीं है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं. अनदर थिंग, इट्स टफ फॉर अस टू होल्ड बैक आवर इमोशंस. हम अपने इमोशन को जब छिपाते हैं इट इज़ वेरी टफ फॉर अस, राइट. सो इट इज़ टफ to hold back our emotions, right. तो अपना इमोशन को छुपाना हार्ड होता है. तो होल्ड बैक के जगह कंसील मतलब सेम, छुपाना, हाइड छुपाना, उसके जगह आप होल्ड बैक यूज कर सकते हैं. डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ, कैंसिल. ये भी आपको पता होगा, आई थिंक सब पता होगा. मैं इन माई एवरी सेशन में 10 फ्रेजल वर्ब के साथ आपके सामने आ जाऊंगी, ओके. ऐसे ही हम मजे मजे में इतने सारे कवर अप कर लेंगे फ्रेजल वर्ब्स, आपको पता भी नहीं चलेगा. कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल, कोई चीज़ को कैंसिल हो जाना. सपोज मीटिंग कैंसिल हो गया एंड आई कैन राइट हियर we called off to shoot our videos because of bad weather, because of, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. मतलब कोई चीज़ अगर कैंसिल हो जाता है उसके जगह हम कॉल ऑफ यूज कर सकते हैं. he called off the meeting because he got an urgent call, okay.
he called off the meeting because he got an accident भी आप लिख सकते हैं, got an accident. उन्होंने वो एक एक्सीडेंट फेस किए, उनके साथ एक सडन एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दिया, राइट. सो डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग? इट्स रियली इंटरेस्टिंग. हमें पता भी नहीं चला कब हमने 10 फ्रेजल वर्ब्स कवर अप कर लिए. डिटेड ऑल 10 फ्रेजल वर्ब्स एंड आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से मीनिंग पता चल गया होगा विथ एग्जाम्पल्स, विथ आई हैव ऑल्सो रिटन सम सेंटेंसेस फॉर यू. तो आप ये वीडियोस, मैं आपको इतना अश्योर करती हूँ, आप अगर सेम वीडियो 2 टाइम्स एटलीस्ट देखेंगे, आई मीन मिनिमम 2 टाइम्स आप देखेंगे, ये ज़िंदगी में आपको कभी भी, मतलब कहीं से भी आप एग्जॉल्ट आर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चला अच्छा एन्जॉय दैट मीन्स. तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, इसमें कोई हार्ड नहीं है. तो ऐसे करके हम एवरी सेशन में 10 फ्रेजल वर्ब्स हम कंप्लीट करेंगे एंड लाइकवाइज within 10 to 12 days hardly we can easily cover up more than 100 phrasal verbs, right? So thank you all for watching my videos and giving such lovely comments. I'm really glad. Thank you.